اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرب کو چاند۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عام الفیل میں اصحاب الفیل نے محرم کی 17 تاریخ کو مکہ معظمہ پہ حملہ کرو۔ یہ حملہ کے 50 دن پیچھے مرحوم عبداللہ کے گھر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو دنیا کو سب سے ملوک بالک پیدا ہوئے۔ بیوہ آمنہ نے جب اپنا پیدائشی یتیم بیٹوں کو گودی میں اٹھائیو تو خوشی کے مارے وہ کی آنکھ بھر آئی۔ ضرور اپنا مرحوم شوہر یاد آیا ہوئے گو۔ بیٹا کو باپ بھی زندہ ہوتا تو دیکھتو کہ کتنا ملوک بچوں پیدا ہوئے ہے۔ جا کے آتے ہی گھر نور سے بھر گو۔ ات بیت کو ایسی خوشبو پھیلی جا کو مقابلہ اور مثال محال ہی۔ آج ولادت کے دن عربی مہینہ کی 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل ہو، عیسوی تاریخ کی 22 اپریل 571 ہی، اور دیسی مہینہ کے مطابق جیٹھ کی پہلی تاریخ 628 سمے بکرمی ہو۔ سحری کے بعد سورج نکلنا سے پہلے یہ بالک کی پیدائش ہوئی۔ یا کی ماں کو نام آمنہ ہے، جا کا باپ کو نام وہب ہے اور وہ بنو زہرہ قبیلہ کو سردار ہے۔ یہ بچہ کا باپ کو نام عبداللہ ہے جو عبد المطلب کو بیٹو ہے، اور عبد المطلب بھی مکہ کو سردار ہے۔ وہب اور عبد المطلب پیچھے جا کے آپس میں ایک کنبو ہی بن جاوے ہے۔ یہ دونوں سردار قریش قبیلہ کا ہی ہاں۔ یہ کئی پیڑھی جا کے ایک ہی دادا کی اولاد بن جاوا ہاں۔ عبد المطلب کا 10 بیٹا ہاں، جن میں عبداللہ سب سے لاڈلو ہو۔ وہ کو بیاہ بڑا چاو کے ساتھ کرو گئے ہو، اپر بیاہ کے کچھ مہینے بعد ہی وہ اللہ کو پیارو ہو گو۔ وہ کی فوتگی کے بعد اللہ نے وہ کی بیوہ کو ہی بیٹو دیو، جا کو ذکر کرو جا رہو ہے۔ ابھی عبد المطلب جیوے ہو، ابھی باقی بڑا بہن بھائی حیات تھا، اپر عبداللہ کو اللہ کے مہی سے بلاو آگو۔ عبد المطلب آپ بھی پیدائشی یتیم ہو۔ وہ کا چاچا کو نام مطلب نے وہ کی پرورش کری ہی۔ عبد المطلب کو نام تو شیبہ ہو، اپر وہ کا چاچا مطلب نے وہ کی ایسی اچھی پرورش کری یتیمی میں کہ شیبہ اپنا آپ سو عبد المطلب یعنی مطلب کو غلام کہہ کریو ہو۔ آپ نے یتیمی دیکھی ہی، اب اپنا پوتو دیکھو کہ پیدائشی یتیم ہے، باپ کو منہ بھی نہ دیکھو تو اس سوچ کے وہ کو دل بھر آتو۔ جب عبد المطلب کو خبر ملی کہ پوتو ہوئیو ہے تو وہ بالک ہے خانہ کعبہ میں لے کے گئے، دعا مانگی اور وہ اوجو گھر لے آئے۔ 7ویں دن بچہ کو عقیقو کرو، سارا کنبالو جا کو نام قریش ہو دعوت دی، سبن کو اچھو بڑھیا کھانو کھوایو۔ لوگوں نے پوچھی کہ بالک کو نام کہاں دھرو ہے تو عبد المطلب نے بتائی کہ چھورا کو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب بڑا حیران ہویا کہ پورا علاقہ میں، پورا کنبہ میں، ات بیت کا علاقہ میں کدی بھی نام نہ سنو، یہ کیسو نام ہے، یا کو مطلب کہا ہے۔ عبد المطلب نے کہی یا کو مطلب ہے جا کی سب تعریف کراں، میں چاہوں ہوں کہ میرا یہ بیٹا کی تعریف سب دنیا کرے۔ 7ویں دن تو عقیقو کرو۔ 8ویں دن ہی عرب میں یہ دستور ہو کہ سردار لوگ، امیر لوگ، شریف لوگ اپنا پیدا ہوتا بچہ ہے دائی کے سپرد کر دے رہا۔ مکہ ایک شہر ہو تو دائی ان بچان نے، ان بالکن نے گاون کے مہی، دیہات کے مہی لے جاتی اور ان کی پرورش کرتی۔ گاون کی آب و ہوا سے بچہ صحت مند ہوتا اور اچھو ڈیل ڈول نکالتا۔ جب بالک دودھ چھوڑ دیتا تو گھر والان کے پہ واپس آ جاتا۔ یہی دستور کے مطابق
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारे दाई ढूंढी जा रही। बाहर सु दाइन को धड़ो आतो और घर वालन से रुपया पैसा तय करके इनका बालकन ने अपना घरन को ले जाती। अब जो दाइन को जत्थो काफलो आयो तो घर घर जाके अपना अपना पसंद का बालकन ने ले आई। जहन जहन सौदो ठीक लगो। अपर आमना के घर कोई दाई ना है। उन्होंने बालक मुफ्त थोड़े पालना है। जहन सु अच्छी उजरत चोखी उजरत मिलती वाई घर का बालक ही लेती। उन्होंने घर घर को तो पतो हो जैसे नटनी ने हर घर को भेद और अंदाजो रहे है। अब आमना के घर या मरे ना हवा कि यतीम बालक है या का पैसा चोखा ना मिल सा। दाइन का काफला को जान को बखत होगो तो एक दाई जाको नाम हलीमा हो। वालो अभी तक कोई बालक ना मिलो हो तो वाने सोची कि खाली हाथ ही जाऊंगी तो नुकसान होएगो या बालक मोहम्मद है ले लूँ कुछ तो मिलेगो। नू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के साथ वाके गांव चलोगो। हलीमा हर छठे महीने बच्चा है माँ से मिलवान लाती। 2 साल के बाद बच्चों माँ बापन के हवाले कर दियो जावे हो। अपर आमना बीवी ने 2 साल के बाद भी बच्चों ना लियो क्योंकि मक्का में बीमारी सी फैली हुई ही। वाने 2 साल के बाद फिर बच्चों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा को ही दे दियो कि अपने पे ही राख। 4 साल की उम्र में बच्चों माँ के पे आके रहन लगो। जे इंसान पतो होवे कि धेरे कहा होएगो तो कितना फैसला ने करन से पहले ही बदल देवे। जे माँ है ये पतो हो तो कि 2 साल पीछे उबिया यतीम है छोड़ जाएगी तो चाहे उदाई लो अपने बालक के एक दिन को बिना देती। 2 साल बाद ही 2 साल ही बेटो पे रहियो। जब वाकी उम्र 6 साल की हुई तो माँ के साथ ननिहाल गयो। हुन कुछ दिन रहियो वापसी पे अपनी माँ और अपनी बांदी उम्मे मन के साथ बाप की कब्र पे गयो। हुन माँ ने शोहर की कब्र पे जाने कैसो असर लियो कि जाने दिल को दौरो पड़ो हो कि हुन ही अल्लाह को प्यारी होगी। वो यतीम जो बाप की कब्र पे आयो हो बाप को मातम करन माँ से भी महरूम होगो। काफला वाला ने माँ पत्थरन में दाब के कब्र बनाई तो 6 साल का बच्चा है जाने कहा समझ जाए कि मचल मचल के रोयो और गोदी सु निकल निकल के कब्र सु माँ की कब्र सु जा लिपटे। बड़ी मुश्किलन सु उम्मे मन कोली में भर भर के लाती। बालक ऐसे ऐसे रोयो कि काफला वालन का भी आंसू निकल आया। जब उम्मे मन मक्का में बच्चा हिलाई तो दादा फिर तड़प उठो। यतीम पोतो माँ से भी महरूम होगो। दादा ही वाको बाप और माँ बन गो वाको सरपरस्त बन गो। सब पोता पाती अपना अपना माँ बापन के साथ रहता और ये मासूम सूरत नूरानी सूरत वाला बालक या नेमत से महरूम है। दादा देख देख के कुड़तो दिल जान सु पोता है अपने साथ साथ राख दो वाके चावन ने पूरा कर दो। अपर 2 साल पीछे 82 साल दादा भी पोता है छोड़ गो। अब बच्चा की देखभाल को जिम्मो चाचा ने उठायो। वाको नाम हो अबू तालिब। अबू तालिब अब्दुल्ला को सगो भाई हो माँ जायो हो। नहीं तो अब्दुल मुतलिब का 8 बेटा और भी हा। अपर पे सोतेला चाचा ताऊ हा सगो अबू तालिब ही हो। अबू तालिब को असल नाम इमरान हो। तालिब वाको बड़ो बेटो हो। वाका नाम पे ही वाकी कुनियत अबू तालिब बन गई। अबू तालिब के 4 बेटा है तालिब अकील जाफ़र और अली। अबू तालिब रुपया पैसा में कुछ कमज़ोर हो। बालक घना हा तो खर्च भी वही हिसाब से हो। अपर माने कदी भी भतीजा को दुख ना दियो। अपना बेटो बना के रखो बस बहुत ही प्यार करो। जैसे ताई चाची अच्छो सलूक ना करा हा अपर अबू तालिब की घरवाली ने भी जाको नाम फातिमा हो जो आपकी बेटी फातिमा की सासू भी बनी। वाने भी वाको भतीजो बड़ा प्यार से रखो। अबू तालिब भी अब्दुल मुत्तलिब की तरह मोहम्मद अपने साथ साथ रख दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाचा के साथ साथ रहतो। जब मोहम्मद 12 साल को हुयो तो वाको चाचा शाम के मही जो कि पड़ोस को मुल्क हो उन तिजारत को माल लेके जान की तैयारी करन लगो। भतीजा ने कही कि मैं भी साथ चलूँगो। चाहे चाहे नू एहसास के सफ़र में परेशानी होएगी घर पे रहवे। अपर भतीजा ने जीत करी कि साथ चलूँगो क्योंकि वो चाचा के साथ साथ रहन को आदी हो। तो फिर चाचा ने भी वो अपने साथ ले लियो।
कोई तो नू कह वहाँ के शाम के मही जाते हुए एक ईसाई राहब ने अबू तालिब से कही कि ई छोरो आखिरी नबी है, मैंने पिछाण लियो। तो वाकी बात सुन के अबू तालिब गैलब से ही घर को बगद आयो। अपर कोई नू कहवे है कि ईसाई और यहूदी तो आखिरी नबी की बाट में बैठा हा कि वो आवे तो वाका हाथ पे बैत करा। जब 12-13 साल की उम्र में ही उन्होंने नबी पिछाण लियो हो तो फिर इस्लाम की ना लाया। एक किस्सो लिखण वाला बतावा हा कि 12 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चाचा के साथ शाम मुल्क को सफ़र करो हो। हकीकत अल्लाह ही जाने है। अब 16 साल की उम्र हुई तो मक्का वालन की लड़ाई अपना दुश्मनन से हुई। दुश्मन तो ना ही वो आपस में लड़क रिया हा। वह लड़ाई को नाम हो हरफुल फिजार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी ही मासूम, भोलो भालो, शरीफ, नेक, तमीज़दार, लड़ाई झगड़ा से पाक हो। न बचपन में न बड़े होके वह लड़ाई झगड़ा से कोई वास्तो ही ना हो। अपर ई लड़ाई जो हो रही वह का घर वाला, चाचा ताऊ सब शरीक हा। या हमारे घरैयान के साथ उभी गयो। अपर मार पीट या कत्ल गारत की बजाय बस ही कर तो कि अपना घरैयान को तीर उठा उठा के पकड़ा तो। ये पहली लड़ाई ही जो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी और जा में कुछ हिस्सों लियो। अब वो बड़ो हो गो तो मैंने सोची कि चाचा पे बोझ पड़ना ठीक ना है, कुछ करने चाहिए। भेड़ बकरी ने तो छोटो हो तो ही चराग रियो हो। अब वाने तिजारत की सोची और चाचा से मशवरो करके शाम और पे का इलाका में माल ले जातो। मक्का वाला शाम और यमन 2 मुल्कन में सर्दी और गर्मी का हिसाब से माल ले जाग रिया है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगन का माल है तिजारत के मारे ले जातो और लोग वालू कमीशन दे देता। पूरा मक्का में मशहूर हो गो कि ई छोरो ई जवान बड़ो मेहनती दियानतदार है, रुपया पैसा में ज़रा भी हेर फेर ना करे। मक्का में ही एक बेवा खातून रह रही जाको नाम खदीजा हो। बहुत शरीफ खातून ही, शरीफ तो शरीफ, अमीर बहुत ही। ऐसी अमीर मालदार के अरब में मलका कहवा रही। 2 बार ब्याही, दोनों बार बेवा होगी। बालक भी हा, अपना महल में खुद मुख्तारी से रह रही। वहाँ ने कमानों को जरियो दूसरा लोगों की तरह तिजारत बना रखो हो। वो आप तो अपना तिजारती माल के साथ ना जाती, अपना माल है काई के हाथ भिजवाती। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को पेश इख्तियार करो तो वह की ऐसी अच्छी शोहरत हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपना रुपये पैसे तो हो ना हो, या हमारे लोगन का माल है दूसरा मुल्कन में ले जातो और वहाँ में सो अपना हिस्सों तनख्वाह या कमीशन ले लेतो। खदीजा ने भी उनसे दरख्वास्त करी कि मेरा माल है भी तिजारत के मारे ले जाओ, मैं तनख्वाह भी दुगनी दूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भर ली। अमीर आदमी में सूझबूझ भी दूसरे लोगों की निस्बत घनी ज़्यादा हुए है। वह खातून तिजारत को माल असबाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करो और साथ अपनो एक ख़ास गुलाम मैसरा भी वह के साथ कर दियो और कही कि ये गुलाम आपकी खिदमत के मारे है। अपर वह गुलाम से कही कि तोय में माल की निगरानी को ना भेज रही, या मानस की हर बात पर निगाह रखियो, हर हरकत नोट करियो कि बाज़ार में सौदेबाजी कैसे करे है, कैसे कमावे हैं, कैसे गाहक बुलावे है, कैसे वह ख़रीदना पर राजी करे है, या को मिजाज कैसो है, या को अखलाक कैसो है। घर बहुत सी हिदायत दे के वो गुलाम साथ भेजो। जाने वह खातून की सोच में कहाँ चल रहो, नहीं तो माल दियो साथ गुलाम भेजो, बात ख़त्म। अब इतने निगरानी करवाना को मतलब कहा हो। ये जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत से वापसी पे मिलो। खातून को तिजारत को लाभ मुनाफो भी दियो तो हैरान कि इतना मुनाफो। फिर वहाँ ने मैसरा बुलायो और वासु कुरेद के ताजिर का बारे में सवाल पूछा, कैसे रहियो, कैसे सौदेबाजी कर रही हो, मिजाज कैसे हो। मैसरा ने खूब तारीफ़ करी कि ना नापतोल में बेईमानी करे, ना लालच करे, ना गाहक धोखा सुमाल बेचे, ना बेहुदा बातचीत करे, ना झूठ बोले, ना मकर फरेब करे, ना साथी ने तंग करे, ना लड़ाई झगड़ों करे और बहुत सी तारीफ़ करी। इस्लाम में अच्छा आदमी की निशानी बताई गई है कि अच्छा आदमी परखना होवे।
तो वह का 3 तरीका हाँ कि वह के साथ सफ़र करके देखो कि इंसान सफ़र में कुदरती मिजाज दिखाई देवे है। सफ़र में आदमी है कई चीज़न सो हालात सो सामना करना पड़े है तो वह की फितरत दिख ही जावे है। दूसरा नंबर पे जो कोई आदमी जांच न हुए तो वह के साथ खानो खा के देखो, दस्तरखान पे आदमी ज़रूर अपनी फितरत है दिखा देवे है। तीसरा वह के साथ लेन देन करके देखो, जो लेन देन में अच्छो है तो फिर फैसलो बेहतर तरीका से तुम कर सको हुआ का बारे में। अब मैसरा तो कई दिनों तक मोहम्मद के साथ रहियो हो, वाने तो उखातो पीतो सोतो जागतो चलतो फिरतो सौदा करतो सब तरीकान सु देखो तो वाने बीबी को सब कुछ सही बतायो कि बहुत भलो मानस है। खदीजा बीबी अंदाजा तो पहले ही हो, जाई मारे तो निगरानी लगाई ही, अब तो सबूत भी मिल गया तो वाने अपना दिल को फैसलो अपनी ज़ुबान से जाहिर करो।